The Indian National Developmental Inclusive Alliance, India, wrapped up its formal meeting in Mumbai, marking a significant step towards a unified opposition strategy for the upcoming Lok Sabha elections in 2024. No convener's name came out in this leg as well, and no logo too was decided for the alliance. But there were several resolutions that were adopted. The India parties resolved to contest the forthcoming Lok Sabha elections together as far as possible. The seat-sharing arrangements in different states will be initiated immediately and concluded at the earliest in a collaborative spirit of give and take. India members also resolved to organize public rallies at the earliest in different parts of the country on issues of public concern and importance. Opposition bloc at the meeting in Mumbai said they will coordinate respective communications and media strategies and campaigns with the theme Judega Bharat, Jeetega India in different languages. This stage represents 60% of the Indian population. If the parties on this stage unite, it is impossible for the BJP to win an election. And two big steps have been taken in that regard. The first step is a coordination committee and committees under that committee. And the second step is a decision that we will expedite all seat-sharing discussions and decisions and make them happen as soon as possible. Mallikarjun Kharge criticized the centre's handling of rising fuel prices and accused it of not working for the welfare of the people. इन्फ्लेशन का हो, अनएम्प्लॉयमेंट का हो, हर चीज की जो बढ़त हो रही उसका हो, और ऑटोनोमस बॉडीज को सत्यानाश कर रहे हैं, और चाहे ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, हर एक ऑटोनोमस बॉडी का मिसयूज कर रहे हैं. ऐसा कभी नहीं हुआ. Bihar Chief Minister Nitish Kumar echoed the sentiment of unity among opposition parties, stating they were working together to oust the Modi-led NDA government at the centre. अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए. और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया है. कोई भी दूसरे की बात कम छपता है और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती. कितना काम पहले हुआ है, अलग अलग राज्यों ने कितना काम किया है, दूसरे पार्टियों ने, उसका कम छपता है. ये कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है. तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है. और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा. RJD chief Lalu Prasad Yadav alleged that minorities are not safe in this country under the rule of BJP. He further stated that the Modi government has failed to fulfill its promise on bringing black money back from the Swiss banks. आप सबको याद होगा कि कितना झूठ बोल करके, कितना अफवाह फैला करके इस सत्ता में लोग आए थे. मेरा भी नाम उस समय और देश के नेताओं का नाम इन लोगों ने यह प्रचारित किया था कि इन लोगों का पैसा स्विस बैंक में जमा है, स्विस बैंक में. और मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करेंगे. 15-15 लाख रुपया. हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया. मेरे 7 बेटियां 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं. देखा कि भाई 15 से गुना कर दीजिए, पैसा काफी मिल जाएगा. हमने तो पशुपालन में कोई पैमानी शैतानी भ्रष्टाचार नहीं किया जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, करा रहे हैं. सारे देश भर के लोग
खाता खुलवा दिया, सब गरीब गुरबा आदमी प्रचारित करवाया इन लोगों ने। और मिला क्या, सिर्फ देश के लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को भी मालूम, आप लोग में से भी खुलवाए होंगे आप लोग पर, प्रेस के लोग भी। हो सकता है भाई मिल जाए, पैसा है देश का तो मिल जाए, वापस आ जाए। Arvind Kejriwal also trained his guns at the center. आज हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार, मुझे लगता है कि आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे अहंकारी सरकार है। एक भारतीय होने के नाते मुझे बेहद दुख होता है। पिछले 3-4 दिन से हम पढ़ रहे हैं कि विदेशों के अखबारों के फ्रंट पेज के ऊपर खबरें छप रही हैं कि हमारी भारत सरकार एक आदमी के लिए काम कर रही है। वो एक आदमी भारत से पैसे निकाल के बाहर विदेश में ले जा रहा है और भारत सरकार, मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री उनकी मदद कर रहे हैं। बहुत दुख होता है एक भारतीय होने के नाते। विदेशों में तो खबरें छपनी चाहिए कि भारत में ये अच्छा हो गया, भारत में वो, तब देश का नाम आगे बढ़ेगा। देश का नाम ऐसे थोड़ी आगे बढ़ेगा कि पूरी भारत सरकार एक आदमी के काम करने के लिए लगी हुई है। आज हमारे भारत का युवा रोजगार ढूंढ रहा है, पढ़ लिख के बीए करके, बीकॉम करके, बीएससी करके रोजगार ढूंढ रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है। और वो जब सरकार के पास जाता है तो पता चलता है कि सारी सरकार एक ही आदमी के लिए काम कर रही है। सारी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज हमारे लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा, लोगों के आमदनी नहीं है, आमदनी उतनी है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के पास जाते हैं, पूरी सरकार एक ही आदमी के लिए काम करने में लगी हुई है। इससे ज्यादा अहंकारी सरकार आज तक कभी नहीं हुई। और ये लोग अपने आप को भगवान से भी बड़ा समझने लग गए हैं। और जब कोई आदमी अपने आप को भगवान से बड़ा समझने लगता है तो फिर उसका पतन भी जल्दी होता है। The meeting in Mumbai signifies a growing alliance of opposition parties in India committed to working collectively towards the 2024 Lok Sabha elections. But will this alliance endure the test of time? This is something that is a classic case of wait and watch. Subscribe to One India channel and never miss an update.